Good afternoon to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new video. Today we are going to take a new chapter, starting of the new chapter, and the chapter number is 2 from the element mathematics, and it is also from the NCERT math number 2. The name of the chapter is, please make a look, inverse trigonometry function. So this video is going to be very important and very interesting, because in this exercise what we have to do find out each and every concept, so that you can do crack, either you are preparing for NDA, JE or your board exam. If you got 100% marks, then this video is going to be very interesting, because in this I take each and every step of the trigonometry inverse function in this lectures. So why it is called, I say it as heart of the class 12th. Why it is called heart of the class 12th? Because this chapter is connected with so many chapters. Chapter number 2 is already inverse trigonometry function, and the chapter number is 7, 8, 9, 10, 11, 12. All the chapters are connected with chapter 2. So that's why I called it as a heart of the class 12. So you never miss this video. Please watch starting from to the end, so that after that watching my video, I hope and get 100%, you got very quickly to sort out any question which is based on this chapter. It's very easy to solve. Why it is? These chapters, the chapter 2 which is your inverse trigonometry function, ये चैप्टर कितने नंबर का है? ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है. Why it is important? Because this carry 8 marks weightage, and the chapter 7 carries 6 and 8 marks, chapter 8 carries 4 and 6 marks, chapter 9 and carries 6 to 8 marks, so chapter 11, 12, 6 and 4. So overall, if you get a weightage of the marks, you find 35 marks. So this whole chapter has a name which is called a calculus. This is called a part of your calculus. So totally calculus depends on this chapter. So it's very important. Either you are preparing for your integrations, definite integration, application of integrations, differentiation, complete differentiation, applications of derivative, differential equation, all the topics are connected with this topic. And so 35 marks overall in class 12 all include this chapter. So this chapter is going to be very interesting. I hope you understand this concept, why it is important. Now I am going to take each and every step in detail. So please listen to me carefully and watch the video start to end. So please have a note or take a screenshot while we are doing this. Now please have a look. I am going to start our topic is what? Inverse trigonometry function. So what is inverse trigonometry function? Inverse trigonometry function है क्या चीज? We have to find out this. So firstly what we have to do? We have to find out the definition of function. Function is what? So सबसे पहले I am talking about function. Function basically a mapping of the elements of one set into the elements of the another set. That is the basic definition of a function. I am again right, please make a look here. Function is basically what? This is a mapping of one set into the second set. What is? This is a function. I am defined a function f. In this, x is what? X is a set, and I am assuming it has a number of elements. Suppose x1,
comma x2 and so on xn. Xn are the number of elements in set X. Similarly, y is also a set. Y has also elements. I am assuming that y1, y2 and so on. So actually क्या चीज है ये? फंक्शन एक ऐसी मैपिंग होती है जिसमें हम एक सेट के एलिमेंट्स को मैप करते हैं विद अनदर एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट. इन दिस मैं करने क्या जा रहा हूं? मैं इन एलिमेंट्स को मैपिंग करने जा रहा हूं. किस एलिमेंट के साथ? इन एलिमेंट के साथ जो ये एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है? दूसरे सेट में. प्लीज मेक अ लुक हियर. दिस इज व्हाट? This is my X set and this is what? This is my set Y. X and Y are my two sets and I am assuming that कि X1, X2 and so on Xn, these are the elements of the set X, and Y1, Y2 and so on Yn, these are the elements of set Y. अब करना क्या है आपको? इन एलिमेंट्स को मैप करना है, मीन्स कनेक्ट करना है बाय ए रिलेशंस वट एवर द फंक्शन डिफाइंड. सो आई एम डूइंग मैपिंग. सो व्हाट आई एम डूइंग? दिस आर द मैपिंग एंड यू ऑलरेडी नो. आपको पता ही कि जब आप इन एलिमेंट्स की मैपिंग इन एलिमेंट्स का करते हो, यू ऑलरेडी डिड इन क्लास 11th. तो इन एलिमेंट्स को या इस सेट को क्या कहते हैं? डोमेन. सो दिस इज व्हाट? ये हमारा क्या है? एक डोमेन है. और कोरस्पॉन्डिंग डोमेन विच आर कनेक्टेड विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट Y, these elements are called range. So this is what? This is our range. So ये हमारा एक सेट है X जिसको हमने डोमेन कहा, जिसको हमने मैप कर दिया एक अनदर सेट में जिसके एलिमेंट्स y1, y2 एंड सो ऑन yn है. इसको क्या कहा हमने? रेंज. सो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डूइंग जस्ट अ मैपिंग ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 इनटू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद सेट 2. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन. सो दिस इज बेसिकली अ functions. Now I am talking about functions. How many types of function? So I am going to next one. So please make a note first because this topic is very easy and this lecture is going to be more and more interesting. So you have to note all the points if you want to clear your every concept. So please make a note. Now I am talking about types of functions. Types of functions. We have different types of function. Like first one is your algebraic function. Second one is what? Trigonometric function. Third one is what? Logarithmic function. Exponential function. And what is inverse trigonometric function. So we have different types of functions: algebraic function, trigonometric function, logarithmic function, exponential function, inverse trigonometric function. In this chapter what we have to do? We have to study करना है inverse trigonometric function. पर जब तक function की definition नहीं पता होगी, how we can reach on the inverse trigonometric function? Is it possible? No, it is not possible. So that's why I start from the functions. So already you know, I am taking a simplest example of a algebraic function. Everyone know about the algebraic function. So this is what I am taking f of x is equal to 2x plus 3.
This is the simplest example of algebraic functions, because in this 2x plus 1 3 is what? This is an algebraic equation. So this becomes a simple algebraic functions. So in this domain क्या है और range क्या है? So it depends on what? It depends on x. So x is called dependent variable. So this is क्या है? This is one. This is your dependent variable. ये dependent variable है, and dependent variable is also called your domain. So this is what? This is domain for the function algebraic function. If I define a domain, I am taking an example A set, because I am going to make a function define x set to y set. मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं एक फंक्शन जिसमें x के एलिमेंट्स को मैप करने जा रहा हूं y में. So x is what? The elements of the domain set. So I am making as a x a dependent variable. So these elements are belonging to your domain. So if I take x as a 1, 2, 3. So x as a set which has 3 elements, 1, 2, 3. I just take a example. So this is what? This is x. So I am taking 1, 2, 3. This is our set x. And this f of x, I am defining a function. So this is a function. And x is mapped into the set y. So this set is what? This is y and this is set is x. Now what are the elements of y? Because the elements of y depends on the values of x. So if I put x is equal to 1. So f of 1 is what? 2 into 1 plus 3. It means 2 plus 3 we get 5. Same if मैं 2 कंसीडर करता हूं तो f of 2 कितना होगा? 2 into 2 4 plus 3 7. Similarly यदि मैं x को 3 कंसीडर करता हूं, if I consider x as a 3, so what will be the values of f of 3? 3 into 2 6 plus 3 9. So we get elements 5, 7 and 9. 5, 7 and 9. So 1 is mapped with 5 and 2 is mapped with 7 and 3 is mapped with 9. So this is the function. And please यहां ध्यान से देखिए, क्या देखना है कि हर एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से मैप किया गया है. कि 1 एलिमेंट 5 से मैप किया गया है, 2 एलिमेंट को मैप किया गया है 7 के साथ, 3 एलिमेंट को मैप किया गया 9 के साथ. सो हर एलिमेंट की एक अलग सी यूनिक इमेज है. सो E1 की इमेज क्या है? 5. 2 की इमेज क्या है? 7. 3 की इमेज क्या है? 9. सो दिस ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्री इमेज एंड दिस इज कॉल्ड अ इमेज. तो यदि आपको हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज मिलती है तो आप उसको कहते हो फंक्शन 1 1. सो ये फंक्शन क्या है? आपका एक 1 1 फंक्शन है. मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूं कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है? क्यों? क्योंकि कंडीशन है. यदि आप किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो फंक्शन शुड बी 1 1 and function on 2. This is the 2 basic condition. If the function satisfy the 2 condition, one is what? 1 1 and second one is on 2. That condition is called bijective condition. You already study in chapter 1. It's very simple. तो उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज आप किसी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये कंडीशन होती है इन्वर्टिबल की. तो आपसे एग्जाम में कोई पूछ ले कि भाई इस फंक्शन का वो इन्वर्ट कर सकते या नहीं कर सकते. इन्वर्ट मींस इनवर्स. तो आप कहोगे यदि फंक्शन 1 1 है और फंक्शन ऑन टू भी है तो फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है. तो अब हमें चेक करना है हम कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे इनवर्स एप्लीकेबल है या नहीं है. क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे 1 1 और ऑन टू है या नहीं है. यदि ऐसा नहीं है
तो हम क्यों अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, इन सब बातों को हमें देखना है। तो सबसे पहले मुझे आप, आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट कि वन वन फंक्शन क्या होता है, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, दिस इज द वेरीफाइड। सेकंड कंडीशन होती है ऑन टू की। ऑन टू का मतलब ये है कि जब आप इमेज की बात करते हो, ईच इमेज, हर एक इमेज की एक प्री इमेज हो, तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। अब आप चेक करिए कि यहाँ पे 5 एक इमेज है, क्या इसकी प्री इमेज है या नहीं है। 5 की प्री इमेज क्या है, 1 है, यस। 7 की प्री इमेज है, यस, 2 है। 9 की प्री इमेज है, यस, 3 है। सो हर एक इमेज एलिमेंट्स की क्या है, एक प्री इमेज है। यदि हर एलिमेंट की एक प्री इमेज मिलती है तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। यदि मैं यहाँ पे 9 की बजाय यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। अब मेरा सेट y क्या है, 7 5 सॉरी 7 आई एम राइटिंग हियर 6। अब मैंने एलिमेंट को क्या लिखा, 6 6 5 7 9। तो मुझे पता है कि 5 की 7 की 9 की इन सब एलिमेंट की तो प्री इमेज है, लेकिन 6 जो मेरा एलिमेंट है सेट y में, उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि इसकी किसी के साथ मैपिंग नहीं है। तो यदि आपको कोई ऐसा एलिमेंट लिखता है जिस एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी आ गई, ये कंडीशन आ गई कि हर एलिमेंट्स की एक प्री इमेज होनी जरूरी है। तो इस केस में क्या है, हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। और यदि कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो वो इन्वर्टेबल भी है और उसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। तो अब यही कॉन्सेप्ट अब हम पे किस पे अप्लाई करना है, अपनी ट्रिग्नोमेट्री पे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हमें चेक करना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है। इफ है तो फाइंड आउट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। सो आई एम गोइंग टू टेक हाउ वी कैन चेक। सो फर्स्ट प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। Now I am going to take our first function is sin x function. This is a trigonometric function. So मैं सभी फंक्शन लूंगा, sin, cos, tan, cot, every function. तो अब स्टार्ट करता हूँ sin फंक्शन से। f of x is equal to sin x. Okay, I am taking a function of trigonometric function. As you know, this x define the domain, so it define domain, और जो वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हमें क्या देगी, रेंज देगी। सो हमें x की वैल्यू चूज करनी है और कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है। तो क्या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि जिसपे साइन की वैल्यू डिफाइंड ना हो, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। क्यों नहीं है, मैं पुट करता हूं, यदि x की वैल्यू को 0 लेता हूं, x इज इक्वल टू 0, और चेक करता हूं कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f of 0 इज इक्वल टू sin 0 एंड sin 0 इज 0, इसका मतलब वैल्यू इज एग्जिस्ट। यदि मैं x की वैल्यू को 30 डिग्री यूज करता हूं और चेक करता हूं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 30 डिग्री, सो दिस बिकम्स sin 30, इसकी वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती है। आप इस वैल्यू को चाहे कितना भी इंक्रीज करो, आपको वैल्यू मिलेगी। मैं और ही वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, x की वैल्यू को मैं सपोज करता हूं 240 यूज कर लेता हूं। नाउ चेक द वैल्यूज, f इज 240, 240 मींस sin 240 एंड 240 वैल्यू यू कैन बी कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करोगे, यू कैन चेंज और यू कैन स्प्लिट 180 प्लस 60, एंड आपको पता है sin 180 पे नो चेंज, sin का sin 60 एज इट इज। नाउ दिस बिकम्स द क्वाड्रेंट थर्ड, और sin थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, एंड sin 60 इज व्हाट, नेगेटिव √3/2। लेकिन हमें वैल्यू तो मिली, इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट।
सो जिस वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसी को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो हमने यहाँ इतनी वैल्यू पुट करी, हर एक वैल्यू पे डिफाइंड है, इसका मतलब ये सब वैल्यू क्या है, इसका डोमेन है। और जो हमें ये वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू क्या है, ये हमारी रेंज है। तो अभी तक तो हमने क्या पुट करा है, 0 से 240। आपको पता है साइन का फंक्शन का पीरियड कितना होता है, 0 से 360 होता है, जो हम लेके चलते हैं। आप इससे ग्रेटर वैल्यू भी लो, मैं इससे ग्रेटर वैल्यू लेता हूं। लेट x इज इक्वल टू, मैं 390 की बात करता हूं, x इज इक्वल टू 390, जो 360 से ज्यादा हो गया। अब आप वैल्यू कैलकुलेट करो, f ऑफ 390। यदि आप साइन 390 की वैल्यू निकालते हो, कैसे निकालोगे, इसको ब्रेक करोगे टू पार्ट्स में, 360 प्लस 30। अब साइन 360 प्लस 30, इसका मतलब क्या आएगा, साइन 30, क्योंकि हमें पता है 360 पे नो चेंज, एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव एंड साइन 30 इज अगेन 1/2। इट मीन हमें वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि x की कोई रेंज नहीं है, जब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो x का डोमेन मतलब फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, रियल वैल्यू हुई, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो इन दिस डोमेन क्या हुआ, ऑल रियल वैल्यू। सो हमें डोमेन मिल गया फंक्शन का, क्या डोमेन है, ऑल रियल वैल्यू। लेकिन अब हम चेक करते हैं कि हमारी रेंज क्या मिली। अब ध्यान से देखिए इसको, मैं साइन 0 पुट करा 0 मिला, 30 पुट करा 1/2, 240 पे √3/2 नेगेटिव, इफ आई पुट 390 वी गेट 1/2। आप किसी भी वैल्यू पे पुट करिए, आपको जो रेंज मिलेगी वो रेंज की एक लिमिटेशन है। चाहे आप 0, 90 नेगेटिव में वैल्यू और पुट करो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू क्यों ना पुट करो, रियल वैल्यूज आपको आंसर मिलेगा। तो फंक्शन हर वैल्यू पे डिफाइंड है, और जो वैल्यू मिलेगी आपको आंसर मिलेगा, रेंज, उसकी रेंज जो है वो लिमिटेड है, -1 से 1 के बीच में। साइन फंक्शन की ये आपकी क्या है, रेंज है। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको रेंज क्या मिलेगी, -1 से 1 मिलेगी। इसकी वैल्यू ना तो -1 से क्या ज्यादा मिलेगी, सॉरी लेस मिलेगी, ना ही 1 से ग्रेटर मिलेगी। तो ये एक बाउंडेड है, तो इसकी रेंज क्या है, बाउंडेड है। और डोमेन अनबाउंडेड है, डोमेन कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज अ फंक्शन। लेकिन हमें इस फंक्शन का क्यों जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं अभी बताऊंगा आपको। इसके लिए मैं साइन फंक्शन को एक ग्राफ पे प्लॉट करता हूं और चेक करता हूं कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, क्योंकि ग्राफिकल टूल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल if you are preparing yourself for NDA or JEE for IIT entrance exams or more competitive exams, merchant navy and so on, in army, air force and so on. So graphical tool सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। यदि आपको ग्राफिकल समझा जाता है, किसी चीज का ग्राफ बनाना समझ आता है, तो ग्राफ की हेल्प से आप लाखों करोड़ों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो वेरी क्विकली। सो ट्राई टू मेक एवरीथिंग एज ए ग्राफ एंड सोल्व करने की कोशिश करिए यूजिंग ग्राफ। यदि आप ग्राफ से बना सकते हो, सोल्व कर सकते हो, तो इट मीन्स आप में कैपेबिलिटी है, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको सोल्व कर सकते हो। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसका एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको पता है, एक एक्स एक्सिस लेनी है, एक वाई एक्सिस लेनी है। मैं एक्स एक्सिस पर वैल्यूज की डोमेन लूंगा। डोमेन क्या है यहाँ पर, एक्स, 0, 30, 40, 60, ऐसे एक्स की वैल्यू लेनी है। आप एक्स की जगह फंक्शन थीटा का भी मान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ f of x is equal to sin x लिया, आप जरूरी नहीं है आप थीटा का फंक्शन बना सकते थे, f of थीटा is equal to sin थीटा। आपको पता है कि थीटा को मोस्टली एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एंगल को किससे रिप्रेजेंट करा है, x से। x is also variable and थीटा is also variable। तो आपकी मर्जी है, किसी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं अब यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ कि x की वैल्यू को मैं थीटा की वैल्यू लूंगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइन ऑफ x निकालूंगा और उसको पूरा अच्छी तरह देखूंगा कि उसका क्या नेचर है, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल आती है मेरी। आपको प्लॉट करना आता है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी आती है, तो प्लीज पॉज द वीडियो और अपना एक रफ स्केच बनाइए कि साइन का यदि आप प्लॉट करते हो तो साइन कैसा दिखाई देगा आपको, क्योंकि उसी से हमारे मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो नाउ, प्लीज मेक अ लुक। अब ध्यान से देखिए, मैंने बहुत सारी वैल्यू ली,
स्टार्टिंग करता मैं 0 से, 0, 30, 60, हर 30 डिग्री के बाद मैंने इंटरवल लिया 30, 60, 90 एंड सो ऑन, और मैंने हर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहा। तो क्या वैल्यू मिली? प्लीज मेक अ लुक। 0 पे वैल्यू मुझे 0 मिली। जब मैं 30 पुट करता हूं तो वैल्यू मुझे 0.5 मिलती है। 30 में sin 30 is 1/2 and 1/2 can be written as 0.5. Similarly, if I put 60, I get the value of 0.87. So similarly, if you put all this value, and you can do verify at your own level, you can verify all these values. So I prepare a table 120, 150, 180, ऐसे मैंने सारी वैल्यूज को लिया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी, 0 से 360 के बीच में एक्स्ट्रा वैल्यूज भी ली, इससे ज्यादा भी, से 360 ओवर। मैंने 360 के बाद क्या लिया? 390 लिया। आपको पता है 390 मैंने अभी कैलकुलेट किया, 360 प्लस 30 हमें वैल्यू कितनी मिली? 1/2 मिली। सो मैंने अब पॉजिटिव डायरेक्शन की बजाय क्या करा? नेगेटिव डायरेक्शन में भी क्या, मैं 30 की बजाय क्या लिया मैंने? -30, और चेक करा साइन -30 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस की 1/2, 0.5। क्योंकि आपको पता है साइन फंक्शन जो होता है वो फंक्शन कौन सा होता है? ऑड फंक्शन होता है, इवन फंक्शन तो होता है। तो साइन ऑफ -x क्या देगा हमें? नेगेटिव साइन x देगा। आपको पता है ये चीज कि f ऑफ नेगेटिव x मतलब साइन -x किसके इक्वल होता है? माइनस साइन x के इक्वल होता है। इसलिए मैं यहां पे जब 30 पुट करता हूं, x को 30, साइन -30, तो ये नेगेटिव बाहर आ गया, मुझे क्या मिला? साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसका मतलब मुझे वैल्यू कितनी मिली? नेगेटिव की 1/2। तो मुझे नेगेटिव 30 पर वैल्यू क्या मिली? माइनस के 0.5, 1/2 मतलब 0.5। सो मैंने सारी वैल्यू को लिया, इनको प्लॉट करा। इस डायरेक्शन में मैं x ले रहा हूं, और y एक्सिस में मैंने क्या लिया? फंक्शन लिया। फंक्शन इज y of f of x is equal to what? sin of x. So f of x is equal to sin of x. ये मैंने किस डायरेक्शन में लिया? y एक्सिस में लिया। अब मैंने इसको चेक करा ध्यान से कि नेचर कैसा आता है, इस टाइप का नेचर आता है। प्लीज लुक। तो अब हमारा मेन पर्पस है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमें साइन का ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके 1/1 फंक्शन होते हैं या ऑन टू फंक्शन होते हैं या नहीं होते? यदि ये फंक्शन 1/1 है और ऑन टू है तो इनका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। आप चेक करिए, आपको सिंपलेस्ट वे क्या पता है कि आप कैसे 1/1 और ऑन टू चेक करते हैं। सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि मैं इस वैल्यूज को रब करने जा रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू तो जस्ट क्या है आपकी कैलकुलेशन के लिए, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अपने खुद कैलकुलेशन करिए और चेक करो कि ये वैल्यू ऐसे होते ही ग्राफ इसका ऐसा आता है या नहीं आता। क्योंकि मैंने आई प्लॉटेड तो मुझे ऐसा ग्राफ मिला है, आपको भी ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। सो फर्स्टली मेक अ नोट फास्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जब 11th क्लास में पढ़ते हैं तो 11th क्लास में क्या पढ़ते हैं कि जो साइन फंक्शन उसका डोमेन रियल होता है, रेंज होती है वो -1 से 1 आती है। जब हम इसको पुट करके देखते हैं, 1/1 की कंडीशन पुट करते हैं, क्या कंडीशन होती है 1/1 की कि इफ यदि आप दो वैल्यूज लेते हो x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब कोई ऐसी दो वैल्यूज लेते हो जिस दो वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो उन वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। दिस इज अ बेसिक कंडीशन फॉर अ 1/1 फंक्शन। यदि ये f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इंप्लाइज कि जो फंक्शन है f ऑफ x1 वो भी नॉट इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ x2 के। दिस इज व्हाट? दिस इज द कंडीशन फॉर 1/1 फंक्शन। दिस इज द कंडीशन फॉर 1/1 फंक्शन। क्या मैं चेक करता हूं कि क्या ये फंक्शन 1/1 है? आपने 11th में पढ़ा है कि ये फंक्शन 1/1 नहीं होता, फिर भी मैं आपको उसको रिपीट करा रहा हूं। मैं दो वैल्यूज लेता हूं, क्योंकि आपको इसको 1/1 प्रूफ करने के लिए 100 वैल्यूज आप दिखा दोगे कि इस फंक्शन पे ये होता है। लेकिन यदि मैं एक भी ऐसी वैल्यू निकाल देता हूं जिसपे ये चीज फेल हो जाती है, तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन 1/1 नहीं है। तो मैं वही चीज करने जा रहा हूं, हर वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करूंगा, एक ऐसी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा आपको कि जिस वैल्यू पे ये दोनों चीज इक्वल नहीं होंगे। चेक इट। मैं बात करता हूं x1 इज इक्वल टू 30 डिग्री,
x1 की वैल्यू में 30 लेता हूं और x2 की वैल्यू में 390 लेता हूं। अब आपको पता है कि 30 डिग्री और 390 डिग्री आपस में इक्वल नहीं है। क्या 30 डिग्री और 390 डिग्री क्या इक्वल है? तो क्वेश्चन इज करेक्ट भाई। 630 एंड 360 आपस में इक्वल नहीं है। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन भी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो फंक्शन 1 1, अदरवाइज क्या है? फंक्शन नॉट 1 1। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं। आपको पता है sin 30, मैं यहीं पे देख लेता हूं। sin 30 की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे? 1/2। आपने सोल्व करा, सोल्व करके क्या वेरीफाई कर सकते हो कि sin 30 की वैल्यू कितनी मिलती है आपको? 1/2 मिलती है। जब मैं sin 390 की बात करता हूं, इसको आपने क्या लिखा? 360 प्लस 30, तो आपको क्या वैल्यू मिली? sin 30 विच इज ऑल्सो 1/2। आपने x1 और x2 को तो क्या लेके चले कि x1 और x2 दोनों अनइक्वल है। लेकिन जब मैं फंक्शन की बात करता हूं f ऑफ x1 और f ऑफ x2, ये तो क्या आ गए? इक्वल आ गई। लेकिन आने क्या चाहिए थे वो? नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन 1 1 नहीं है। सो इफ एनी वन कंडीशन फेल, आइदर 1 1 और ऑन 2, तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। और फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका इन्वर्स कैसे निकल सकता है? तो हमारा आंसर इज क्लियर कि वे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ना तो 1 1 होते हैं ना ही ऑन 2 होते हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन इज कंप्लीट। लेकिन अब 12th लेवल की बात करते हैं। फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि हम थ्रू आउट द डोमेन की बात करते हैं तो फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है, तो आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन अब हमें करना क्या है? इसको बनाना है कि इसको इन्वर्स कैसे करें। इसके लिए हमें कुछ डोमेन सेट करना होगा कि जिस डोमेन पे ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। आपको पता है इसका डोमेन जो है वो इनफाइनाइट है, तो यहां पे हम एक डोमेन नहीं निकाल सकते। आप हजारों डोमेन की रेंज निकाल सकते हो जिस पे फंक्शन 1 1 भी बन सकता है और ऑन 2 भी बन सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसे साइन 11th क्लास की बात करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना तो वो 1 1 है ना ही वो ऑन 2 है। लेकिन हम 12th लेवल की बात कर रहे हैं तो हम उन्हें फंक्शन को क्या बनाएंगे? 1 1 भी बनाएंगे और ऑन 2 भी बनाएंगे। और 1 1 एंड ऑन 2 बनाने के लिए हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है कि फंक्शन में 1 1 की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और हर इमेज की एक प्री इमेज होनी चाहिए। यदि ऐसा चीज आप डिफाइन कर दो किसी भी रेंज पे, इंटरवल पर, तो उस रेंज पे या इंटरवल पर क्या होगा? फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। तो हमारे पास रेंज तो इनफाइनाइट है, इसका मतलब हमारे पास इंटरवल भी जो आएंगे वो भी इनफाइनाइट आएंगे। लेकिन हम चूज करेंगे एक ही, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंटरवल है जिसपे फंक्शन 1 1 भी और ऑन 2 भी है। लेकिन मैं चूज करूंगा एक। अभी आपको निकालना सिखाता हूं कि वो 1 1 कौन सा होगा, किस रेंज पे होगा। आप ध्यान से देखिए, मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं, ये वैल्यू। आप इसको ध्यान से देखना, -90 से लेकर +90 के बीच में देखते हैं। क्या कहा मैंने? -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के बीच में। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से देखिए ध्यान से, मैं इसको हाईलाइट कर दिया। दिस इज व्हाट? -90 डिग्री एंड दिस इज व्हाट? दिस इज +90 डिग्री। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इस रेंज की बात करता हूं। सो मुझे इसके लिए रब करना पड़ेगा। ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेक अ पॉज एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो अब चेक करिए, मैंने रेंज क्या ली? -90 डिग्री से लेकर +90 के बीच में मैं रेंज ले रहा हूं। -90 से +90 के बीच में आपको दिखाई दे रही है रेंज। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं, ये रेंज, इसको मैंने डार्क कर दिया। अब आपको दिखाई दे रही है रेंज। -π/2 से लेकर 90 को आप यदि रेडियंस की बात में करते हो तो इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो -π/2 से लेकर π/2, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब ध्यान से देखिए, आप कोई भी एक वैल्यू लीजिए, क्या हर एलिमेंट के एक यूनिक इमेज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। कैसे मिल रही है? जैसे मैं sin 30 की बात करता हूं, sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे? 1/2 मिल रही है, मिल रही है। अब मैं यदि इसको नेगेटिव में और लिखता हूं
चेक कर सकते हो। साइन -30 की बात करता हूं, साइन -30 ये रहा, -30 पे वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, -1/2। आपको पता है क्या 30 नॉट इक्वल टू -30 है, वैल्यूज अलग अलग है। और फंक्शन 30 पे जो वैल्यूज आ रही है और -30 पे जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या है, नॉट इक्वल है। तो मैंने क्या लिया, मैंने ये लिया कि 30 नॉट इक्वल टू -30, दो वैल्यूज ली, दोनों अलग अलग थी। और उसमें फंक्शन को देखा, फंक्शन भी क्या आया, अलग अलग आया। तो ये कंडीशन क्या बन गया, ये 1 की कंडीशन बन गई। तो इसका मतलब क्या है, मैं -π/2 से लेकर π/2 यदि रेंज बनाता हूं, डोमेन बनाता हूं, तो इस डोमेन पर ये फंक्शन क्या है मेरा, एक 1 फंक्शन है। और इट इज ऑल्सो आप ऑन टू फंक्शन, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू, आप किसी भी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, डोमेन मिलेगा। जैसे मैं कोई भी एक पॉइंट इस कर्व पे सेट कर लेता हूं, कोई भी एक पॉइंट, जैसे मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, मान लो ये पॉइंट ले लो। इस पॉइंट पे यदि मैं इसकी डोमेन की बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये क्या बन गई मेरी सारी, इन पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे मेरे इमेज है, और इमेज के कोरस्पॉन्डिंग यदि मुझे एंगल मिल जाता है वो मेरे क्या बन जाएगा, डोमेन। यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मुझे कोई ना कोई एंगल मिलेगा। यदि मुझे एंगल मिल रहा है इसका मतलब इसकी प्री इमेज है। एक्स इज व्हाट, क्योंकि फंक्शन देखिए ना क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स है। तो x क्या है यहाँ पे, प्री इमेज है, और जो सोल्व करने के बाद मिलता है वो क्या आपकी रेंज है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया रेंज पर और उसके कोरस्पॉन्डिंग x देखा, x फाइंड आउट है, यस। तो हर एक इमेज की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी फंक्शन है। सो इस रेंज में -π/2 से लेकर π/2 पे फंक्शन 1 भी है और फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। मैंने यही की रेंज क्यों डिसाइड करी, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो sin x की वैल्यू होती है फंक्शन की, वो कहां से कहां बाउंड होती है, -1 से 1 होती है। अब चेक कर सकते हो, sin -90 कितना होता है, -1 होता है, और sin +90 कितना होता है, 1। इसका मतलब -1 से 1 मेरी सारी वैल्यू इस इंटरवल में इंक्लूड है, इसलिए मैंने ये इंटरवल लिया है। आप इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरवल ले सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल आप यहां से यहां तक ले सकते हो, 90 से लेकर कहां तक, 270 तक भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है, और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, कोई भी प्री इमेज की दो इमेज नहीं मिलेगी। तो ऐसे क्या है, आप हजारों लाखों बना सकते हो। तो आप अपनी मर्जी से अपना डोमेन सेट कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक्स जो हम अपना डोमेन है वो एक पर्टिकुलर सेट करते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट्स क्या करें, उसी को अपना बेस बना के आके क्वेश्चन सोल्व करें। सो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि हम अ फंक्शन का जो हमारा 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं था, लेकिन हमने उसको बाउंड कर दिया। अब बाउंड करके हमने क्या करा, एक ऐसा फंक्शन निकाला, एक ऐसा फंक्शन निकाला जो फंक्शन क्या है, उस फंक्शन का इनवर्स होगा, क्योंकि फंक्शन हमें 1 में मिल गया और ऑन टू बी, दिस इज द कंडीशन फॉर अ इनवर्स। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू। इट्स वेरी आसान, बहुत सिंपल है। यदि आपको ये चीज समझ आ गई है तो आगे वाले लेक्चर क्या होंगे, बिल्कुल आपके लिए सिंपलेस्ट बन जाएंगे, हलवा बन जाएंगे। इट्स वेरी इजी। सो ट्राई टू डू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द डोमेन। सो साइन फंक्शन के केस में अभी समझिए हमारा डोमेन क्या है और रेंज क्या है। मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन फंक्शन के केस में, यहां पे हमारा डोमेन क्या है, डोमेन मतलब जहां x पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू कहां से कहां तक पुट कर रहे हैं, -90 से +90। तो आप इसको 90 की फॉर्म में ले सकते हो, π/2 की फॉर्म में ले सकते हो। तो मैं इसको जनरली क्या ले रहा हूं, 90 -π/2 से लेकर π/2। अब याद रखिएगा मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ली है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि वो -π/2 भी इंक्लूड है और +π/2 भी इंक्लूड है। और जब आप इन वैल्यूज को यूज करते हो तो -90 पे आपको -1 मिलती है और +90 पे आपको 1 मिलती है। इसका मतलब आपको रेंज कितना मिल रहा है, ये डोमेन है और आपको रेंज कितनी मिल रही है, -1 से 1। सो ये भी क्या है, इंक्लूड है, -1 भी मिलता है आपको, 1 भी मिलता है, तो क्या मिलेगा आपको, क्लोज ब्रैकेट्स। सो दिस इज द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन -π/2 एंड -1 to 1। किस केस में है ये, फॉर 1 1 एंड ऑन टू। इसको जरूर नोट करना, किसके लिए ये, फॉर 1 1 एंड
ऑन टू के लिए है ये चीज, अदरवाइज तो डोमेन क्या है इसका, रियल वैल्यू है, लेकिन 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए हमारा डोमेन क्या रहेगा, -90 से लेकर +90 एंड रेंज क्या रहेगी, -1 से 1। सो आई होप, मुझे लगा है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब हम किस पे जाएंगे, इनवर्स पे। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री 1 1 और 2 नहीं थे तो उसको हमने बना लिया। तो ऐसे हम हर फंक्शन को कोस साइन कोसेकेंट सबको बनाएंगे। तो अभी ये हमने क्या लिखा, फंक्शन। अब हम किस पे आएंगे, इनवर्स फंक्शन पे। सो आई होप आपको समझ आया है, तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए मैंने इसको रब नहीं करा, क्यों नहीं रब करा, क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि ये मुझे दोबारा से ड्रॉ करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको रब नहीं करा। अब हम बात करते हैं 1 1 ऑन 2 बन चुका है, अब हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शन की। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ डेफिनेशन लिखनी। हमारा पहले फंक्शन हमने डिफाइन किया था किस फंक्शन में, एक्स फंक्शन में। इसका मतलब मैं एक सेट था एक्स जिसके एलिमेंट्स 30 40 सारे एलिमेंट्स थे, मैंने इसको मैप करा एक दूसरे सेट में जिसका नाम है y। y इज व्हाट, इसी fx का नाम क्या नाम दे दिया मैंने, y इज साइन x। सो ये y क्या है मेरा, एक अनदर सेट है जिसको मैंने x वेरिएबल एलिमेंट्स को y एलिमेंट्स में मैप किया गया है। तो अब मुझे एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है, न्यू फंक्शन, जिसमें इसका उल्टा हो, इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब उल्टा। तो मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं, g फंक्शन, जिसमें क्या करना है, मुझे उल्टा करना है। इसका मतलब ये पहले क्या है मेरा, ये डोमेन है और ये क्या है, मेरी रेंज है। अब मैं इसको उल्टा करना चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं एक फंक्शन अब बनाने जा रहा हूं g फंक्शन, जिसमें मैं रेंज को मैप करूंगा किससे, डोमेन से। सो y मैप कर रहा हूं मैं किसको, x से। तो है तो ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन। बट यदि मैं दोनों को कंपैरिजन करता हूं तो ये फंक्शन को मैं एक दूसरा नाम दे सकता हूं, कह सकता हूं कि g जो फंक्शन है वो इनवर्स ऑफ फंक्शन f है, लेकिन है दोनों फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि ये x के एलिमेंट को मैप करता है y के एलिमेंट से, लेकिन ये मैप करता है कि y के एलिमेंट्स को मैप करता है x के एलिमेंट से। तो दोनों के दोनों फंक्शन है, लेकिन जब कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये g फंक्शन क्या बन गया, ये इस फंक्शन का इनवर्स बन गया। सो इन दिस केस दिस इज एक्चुअली क्या है मेरी ये चीज, ये मेरा डोमेन है। अब g फंक्शन के लिए ये मेरा क्या है, डोमेन है, और ये मेरा क्या है, रेंज है। लेकिन जब मैं कंपैरिजन की बात करता हूं, कंपैरिजन इन द सेंस y क्या है, रेंज है किसकी, फंक्शन की। जब मैं इसको कंपैरिजन पर्पस में लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, दिस इज व्हाट, दिस इज रेंज ऑफ f का मतलब फंक्शन ऑफ f। जब मैं इसकी बात करता हूं रेंज की, मतलब x क्या है मेरा, डोमेन है, x का डोमेन है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ये क्या है, ये सिंपली एक डोमेन है ऑफ f का। सो इट्स वेरी सिंपल। मतलब जो हमारा फंक्शन है, यदि हम उसका इनवर्स निकालना चाहते हैं तो क्या चेंज होता है, जो हमारा नया फंक्शन इनवर्स फंक्शन बनता है उसका डोमेन उसकी रेंज बन जाता है, और उसकी रेंज क्या बनती है, उसका डोमेन बन जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये मेरा साइन फंक्शन था, साइन फंक्शन का मेरा डोमेन क्या था, -π/2 से π/2। यदि मैं इनवर्स फंक्शन की बात करता हूं, इनवर्स फंक्शन में डोमेन क्या बन गया, यहां देखिए डोमेन क्या बन गया, रेंज बन गया। इसका मतलब यहां पे मेरी वैल्यू कितनी मिली, -π/2 से लेकर, सॉरी रेंज इज व्हाट, रेंज इज दिस -1 to 1 एंड डोमेन ऑफ f इज व्हाट, -π/2 से π/2 बट क्लोज ब्रैकेट्स। जब मैं इसकी बात करता हूं, डोमेन यहां पे क्या था, -π/2 से π/2, और रेंज क्या थी, -1 से 1। तो ये अपोजिट हो गया बिल्कुल। सो इट्स वेरी सिंपल। सो जब आपका साइन फंक्शन है तो उसका डोमेन -π/2 से π/2 है, और रेंज उसकी क्या है, -1 से 1 है। लेकिन जब आप इनवर्स फंक्शन लेते हो, जी हमारा फंक्शन क्या है, इनवर्स। आप इसको लिख कैसे सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
जी ऑफ, दिस इज व्हाट इनवर्स ऑफ फंक्शन। सो साइन, और साइन के ऊपर आप एक -1 लिखोगे, तो -1 क्या इंडिकेट करता है, उसका हम इनवर्स निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, साइन इनवर्स x लिख सकते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन g ऑफ x। ये क्या बन गया, मेरा इनवर्स फंक्शन बन गया। तो आपको समझ आया होगा कि यदि आपको सिंपल फंक्शन की बात करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका डोमेन कितना आया, -π/2 से π/2, और उसकी रेंज कितनी है, -1 से 1 है। लेकिन जब मैं फंक्शन को इनवर्स में चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने 1 भी बना लिया और 2 भी बना लिया, तो जब मैंने एक नया फंक्शन बनाया g फंक्शन, उस g फंक्शन में हमारे रेंज और डोमेन क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो अब डोमेन क्या बन गया, मेरा रेंज बन गई किसकी, क्योंकि y था, y एक्चुअली क्या है, रेंज ऑफ f है, और f की रेंज हमें पहले से ही पता है, क्या थी, -1 से 1। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसका डोमेन बन गया, और ये इसकी क्या बन गई, रेंज बन गई। आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ग्राफिकल भी देखना है। तो ग्राफिकल समझने से पहले आप जस्ट इसको एक बार नोट कर लीजिए कि हमारा इनवर्स साइन इनवर्स फंक्शन है, तो उसका डोमेन क्या होगा और उसकी रेंज क्या होगी। पहले आप इसको नोट करिए। तब जरा एक पॉइंट को नोट करिए। अभी आपने नोट कर लिया कि -π/2 से लेकर π/2 क्या होता है, उसका डोमेन होता है। किसके केस में, सॉरी, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेंज फॉर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट किससे, इनवर्स की बात करता हूँ। यदि मैं सिंपल फंक्शन की बात करता हूँ, तो ये क्या है, इसका डोमेन है, और जो वैल्यूज आती है -1 से 1, वो उसकी रेंज होती है। यदि मैं सिंपल फंक्शन की बात करता हूँ, आपने देखा कि 1 बनाने के लिए मैंने क्या देखा, -90 से लेकर +90 के बीच में फंक्शन को मैंने क्या बना लिया था कि ये फंक्शन मेरा 1 भी है, 2 भी है। आपको बताया कि ऐसी बहुत सारी वैल्यू है, जैसे यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो गया, फिर आप 180 का इंटरवल ले सकते हो, 90 से लेकर 270, सो 90 से लेकर 3π/2, 3π/2 का मतलब क्या होता है, 270 डिग्री। सो 90 से 270, सेम आप इस साइड जाना चाहते हो तो इस साइड जा सकते हो, -90 से लेकर -270। ऐसे देखो, आप इधर भी जा सकते हो और राइट हैंड साइड में भी जा सकते हो। तो हमारे पास यदि 1 फंक्शन यदि थ्रू आउट बनाना चाहे, तो हमारे पास हजारों लाखों इंटरवल्स है जिसमें हम फंक्शन को 1 और 2 बना सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। सो हमारे पास बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन जब हम ब्रांच में से पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को चूज करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो मैं अब इसमें कौन सी सिलेक्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में यूज करूंगा दिस रेंज, -π/2 से लेकर π/2। तो इसको मैंने कुछ नाम दिया, इसको क्या नाम दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आप इस चीज को नाम याद रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हर जो क्वेश्चन में आपसे कहे कि फाइंड आउट करो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू इसका मतलब क्या है, आपको पर्टिकुलर इस रेंज के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करनी है, ना तो ये रेंज लेनी है ना ये रेंज लेनी है, आपको सिर्फ यही सिलेक्ट करना है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। अदरवाइज ये सब चीज क्या बन गई, ये इसकी ब्रांच ऑफ फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की ब्रांच बन गई। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट अगेन। अब ध्यान दीजिए, अब मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ किसका, इनवर्स फंक्शन का। तो अभी पहला फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स। तो हमने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, अब मैं इसका इनवर्स का फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हो, वेरी सिंपल होता है कि आप क्या करो, इमेज लेनी होती है हमें, रिफ्लेक्शन इमेज, किस लाइन पे, y = x लाइन पे। क्या मतलब क्या है, एक लाइन प्लॉट कर सकते हो आप। जैसे मैं एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ, किस फंक्शन के लिए करने जा रहा हूं मैं, इनवर्स फंक्शन के लिए। मेरा फंक्शन यहाँ पे फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स x। तो ये आपको पता हो सिंपल, यदि मैं एक लाइन प्लॉट करना चाहूँ y = x, वो एक लीनियर लाइन होती है, और लीनियर लाइन कितने डिग्री के एंगल पे जाती है, 90 डिग्री पे। तो आप यदि आप प्लॉट करना चाहोगे y = x लाइन को, तो आपको लाइन ऐसी दिखाई देगी। क्या है ये, सिंपल, y = x एक लाइन है। तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, जस्ट एक मिरर यूज करूंगा कि इस लाइन पे क्या होगी, एक वेव की मिरर इमेज बनेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या बना सकते हो आप, इनवर्स फंक्शन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है y = x लाइन की। अब करना क्या होता है, जब आप इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इट्स वेरी सिंपल होता है। इनवर्स ही नाम बता,
तो इसका क्या मतलब है, ये जो आपने एक्स एक्सिस पे लेते थे उसको वाई एक्सिस पे ले लो, और जो वाई एक्सिस पे प्लॉट करते थे उसको किस पे ले लो, एक्स एक्सिस पे। तो आप अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 30 किस एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पे, तो मैं अब इसको किस पे लूंगा, वाई एक्सिस पे। सो मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे ले रहा हूँ 30 डिग्री। अब मुझे पता है साइन 30 पर वैल्यू कितनी होती है, थोड़ा साइन 30 पर वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। यदि मैं अब इसकी बात करता हूं 60 की, साइन 60 पे वैल्यू कितनी होती है, 0.87 होती है। तो यदि मैं इसको देखूंगा तो ये वैल्यू मुझे यहां कहीं मिलेगी 0.87। अब इसको पॉइंटों में लिखना चाहते हो तो 0.5 लिख सकते हो। इसी टाइप से मैं यदि 90 की बात करता हूं, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब मुझे कहां क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिल रही है। अब ऐसे ही आप नेगेटिव में भी ले लो। अब मैं ये नेगेटिव में लेता हूं क्योंकि अब मैंने क्या बनाया, एक्स एक्सिस पे जो लेता था वो वाई एक्सिस पे ले रहा हूं, और जो वाई एक्सिस पे लेता था वो एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं। तो अब यहाँ पे -30 पुट करता हूं। आपको पता है साइन -30 कितना होता है, -1/2। तो वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, -1/2। -1/2 का मतलब क्या है, -0.5। यदि मैं सेम किस पे पुट करता हूं, -60 पे, तो आपको पता है -60 पे वैल्यू क्या मिलती है, 0.87। तो मुझे नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव में पुट कर रहा हूं क्योंकि दिस इज एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस है, और यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव एक्सिस। तो मैं y को भी नेगेटिव में ले रहा हूं और मुझे वैल्यू भी किस में मिल रही है, नेगेटिव में मिल रही है। ऐसे मैं 90 की बात करता हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, -1। अब जैसे इस पॉइंटों को जब आप मिलाते जाएंगे आपको कैसे दिखाई देगा, आपको जस्ट वेव शेप ऐसे नजर आएगी, यदि मैं थोड़ा इसको एग्जैक्ट करना चाहूंगा तो आपको ये शेप इस टाइप से नजर आएगी, दिस वन इज योर लाइन, और मैं कुछ प्लॉट करना चाहूंगा तो हमें ऐसे नजर आएगी, ऐसे करके, और ये इस टाइप से। तो आपको क्या दिखाई दिया ये चीज, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या हो गई, इसका यदि आप इसको मैं रोटेट कर देता हूं तो आपको ये रोटेट से नजर आएगी। इसका मतलब ये किस टाइप की शेप बन गई, यदि आप इसको थोड़ा छोटा व्यू में देखते हो तो कैसे दिखाई देगी आपको, ये इस टाइप से दिखाई देगी आपको। इस टाइप से दिखाई देगी। तो ये फंक्शन किसका है, ये हमारा इनवर्स फंक्शन का है। और यदि मैं साइन एक्स फंक्शन की ड्रॉ करता हूं तो कैसे नजर आती है, इस टाइप से नजर आती है। तो यदि मैं इसको पर्टिकुलर एक लाइन पे लेके जाना चाहता हूं तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो एग्जैक्ट प्लॉट होगी वो कैसी प्लॉट होगी, इसको ध्यान से देखिए। यदि मैं इसको एग्जैक्ट प्लॉट करना चाहता हूं लाइन के अकॉर्डिंग तो ये कैसे दिखाई देगी, ये लाइन है आपकी, तो ये जस्ट आपको ऐसे दिखाई देगी। इस टाइप से कि जो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स एक्सिस लाइन वाली, ये एक आपकी लाइन है। तो यदि आप इस ऊपर वाली को देखते हो तो बीच में यदि मिरर मान के चलोगे तो ये क्या चीज है, ये एक इसकी मिरर इमेज बन गई, सो सिंपल। तो हमने क्या पुट करा, जो ये वर्टिकली एक्सिस पे ऐसी लाइन जा रही है ये किसकी है, ये इनवर्स फंक्शन साइन एक्स है, और जो हॉरिजॉन्टल पे लाइन जा रही है ये दिस वन इज, ये आपकी फंक्शन ऑफ साइन एक्स है। तो इनवर्स प्लॉट करना इज वेरी इजी। तो वर्टिकली लाइन पे जो y इक्वल टू एक्स लाइन है आपकी, इस पे ये क्या है, ये बेसिकली है रिफ्लेक्शन है, इस लाइन का रिफ्लेक्शन ये है। तो एग्जैक्ट वेव शेप कैसी बनेगी, ये वेव शेप है जो आपकी किसकी बनेगी, फिर आप इसको एनालाइज करते हो कि इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। और अदरवाइज ये शेप किसकी है, यदि आप वर्टिकली लाइन की बात करते हो तो ये शेप किसकी होगी, ग्राफ किसका हो गया, इनवर्स फंक्शन का। सो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। सो ये इनवर्स का ग्राफ है और ये साइन फंक्शन का ग्राफ है।
I hope you understand this. So please draw it and try to make more and more. क्योंकि आपको ये लर्न हो गया तो आप JEE IIT एग्जाम क्रैक कर पाओगे, क्योंकि दिस इज द एग्जाम फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट। कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो ये चैप्टर आपके लिए काफी टिप पे हो जाएगा। आपके 8 मार्क्स का 35 मार्क्स आप इजीली क्रैक कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। सो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। So please make an overview of the sine function, inverse function. What is again for invertible function के लिए यदि फंक्शन आपका sin x है तो इसका डोमेन क्या है, -π/2 से लेकर π/2 क्लोज ब्रैकेट। इट मींस दोनों वैल्यू इंक्लूड है। एंड रेंज क्या है, -1 से 1 है। यदि आप इनवर्स फंक्शन की बात करते हो, साइन इनवर्स फंक्शन को आप सिंपली लिख सकते हो y = sin इनवर्स x भी लिख सकते हो। तो इस केस में क्या बन गया, अपोजिट हो गया। This becomes domain and this becomes range. So this is domain and this is range. So क्या मतलब है इसका, we are mapping this -1 to 1 into -π/2 π/2. So this becomes domain and this is the range. So by definition क्या कहती है कि यदि आपका sin inverse function into sin x है तो यहाँ पे ये वैल्यू इज इक्वल टू x होगी। क्या मतलब है, sin इनवर्स sin को कैंसिल आउट कर देगा और आपको क्या वैल्यू मिलेगी, x मिलेगी। कैंसिल आउट का मतलब ये नहीं है कि कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मतलब है, ये साइन इनवर्स दिस साइन एक्स क्या है, ये पर्टिकुलर वैल्यू देगा। और आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो जब आपको -1 से 1 रेंज लाने के लिए आपको वैल्यूज पुट करनी होगी किसकी, एक्स की। तो एक्स की क्या रेंज है, तो एक्स की रेंज है -π/2 से लेकर π/2। इसका मतलब यदि आपका कोई ऐसा फंक्शन मिलता है और यदि एक्स की वैल्यू आपको इस रेंज में मिल जाती है तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, x। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन π/3 और आपसे पूछता है कि इस क्वेश्चन को क्या करो, इवेल्युएट करो। आपको सोल्व करना है, बताना है इसका आंसर क्या आएगा। आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन इंटू एक्स, ये इज इक्वल टू आपको x देगा, यही वैल्यू देगा। लेकिन कब देगा, जब ये वैल्यू जो x की है इसकी रेंज होनी चाहिए। रेंज कहां से कहां होनी चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो आप चेक करिए, π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री -90 से 90 के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, 60 इसके बीच में इंक्लूड करती है। तो आप क्या लिख सकते हो क्योंकि बिकॉज π/3 बिलोंग्स करता है किससे, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। इसलिए क्या होगा, साइन इनवर्स साइन π/3 आंसर हमें क्या देगा, π/3 देगा। तो ये π/3 क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। इट्स वेरी सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका 1 मार्क्स का आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ये रेंज है वो इसके बीच में ही बिलोंग करती होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको π/3 नहीं देगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, then I am taking another example of like question. Please make a note first. Now अब चेक करिए, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या कहता है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। 2π/3 मतलब पाई की वैल्यू 180 होती है। 180 into 2 360/3 you get 120। तो साइन इनवर्स साइन 120 इसका आंसर क्या होगा। आप प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि यहां पर वैल्यू कितनी मिल रही है, 2π/3 एंड यू नो 2π/3 दिस साइन इज नॉट बिलोंग टू। इस मतलब कि 2π/3 बिलोंग नहीं करता किससे, -π/2 π/2 से। इसका मतलब आंसर नॉट आपका आंसर आपका 2π/3 नहीं होगा। तो इसका आंसर यदि 2π/3 नहीं है तो फिर क्या आंसर होगा, उसको कैसे निकालेंगे। लेकिन पहला स्टेप आपको समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा कि जब भी साइन इनवर्स इनटू साइन फंक्शन मिलता है तो आप इसको कट मत करिए, आंसर ये नहीं होगा। आंसर को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको आपको अपने डोमेन से मैच करना होगा कि क्या ये x की वैल्यू मैच करती है नहीं करती। क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू -90 से 90 के बीच में होनी चाहिए, बट यहाँ पे 2π/3 कितना है, 120 डिग्री है। तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमें आंसर 2π/3 नहीं मिलेगा। सो 2π/3 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो अब आपको क्या करना है, इसको बनाना है। अब बनाएंगे कैसे, उसके लिए प्लीज पॉज द वीडियो बिकॉज आई एम डूइंग सम पोर्शन रब।
अब देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है प्लीज में करो। हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, और आपको क्या करना है, 2π/3 को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ -90 से 90 के बीच में। इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है कि साइन को साइन ही रखना है, चेंज नहीं करना। और आपको पता है चेंज नहीं करना हो तो क्वाड्रेंट को किस में रखते हैं, या तो 180 माइनस करेंगे या 180 प्लस, या 360 माइनस या 360 प्लस। आपको पता है इस चीज का। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं इसको क्या ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे साइन फंक्शन को चेंज नहीं करना। तो पहला एंगल या तो 180 प्लस या माइनस, या 360 माइनस या प्लस होगा। तो मैं 180 को क्या लिख सकता हूँ, पाई लिख सकता हूँ। अब मुझे ऐसी वैल्यू प्लस या माइनस करके लिखनी है कि जिसको सोल्व करने से यही बन जाए 2π/3। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, -π/3 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आप सोल्व करके देखिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 3π माइनस पाई 2π/3। सो आपको आंसर कितना मिलेगा, 2π/3 ही मिलेगा। इसका मतलब आराम से करेक्ट। हमने क्या करा है, कुछ नहीं करा, 120 डिग्री था, 120 का मतलब क्या है, वो 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, और 120 को मैंने दो पार्ट्स में करके लिख दिया। कैसे लिख दिया, 180 माइनस 60, क्योंकि 180 में से 60 माइनस करोगे आपको 120 मिलेगा। आंसर तो 120 ही है। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ फॉर्म को चेंज करा और कुछ नहीं किया। सो आई एम सिर्फ चेंज ये किया है कि 180 में से 60 माइनस कर दिया। सो सेम फॉर्मेट ये है कि मैंने रेडियन में लिख दिया, मैंने डिग्री में, ऐसे सिंपल है। सो नाउ टू सॉल्व दिस, आपको पता है 180 पे नो चेंज, तो साइन का साइन मिलेगा आपको, एंड π/3 एज इट इज। आपको पता है 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आंसर भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव साइन लिखने की कोई नीड नहीं है। अब देखिए π/3, अब π/3 ये बिलोंग्स करता है किससे, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में बिलोंग करता है। अब ये बिलोंग कर गया, बिलोंग करके इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स इनटू साइन x गिव्स अस x। सो व्हाट्स द आंसर इज π/3। क्या कंडीशन थी कि x इसकी रेंज में आना चाहिए था, और x इसकी रेंज में आता है। x हमारा यहाँ पे क्या है, π/3 60, तो 60 माइनस 90 और 90 के बीच में आ रहा है। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज दिस π/3। I hope you understand this concept. So the first exercise according to NCERT is this. It's very simple. If you do that, it's very easy. You can do very quickly. So now according to definition second. So please make a note first. I am going to rub such portion. Now look at the second definition according to inverse function. Sin inverse x gives us x. I am giving an example. इवेल्युएट करना है आपको, सपोज साइन इनवर्स 1/2 आपको सॉल्व करना है इसको। तो आपको क्या चेक करना है कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इज व्हाट इन दिस केस, x इज 1/2 इन दिस केस। So what you have to do? You have to check the values of x, whether it is belong to your domain or not. Please look it. The values of x must be -1 to -1. So here 1/2 means 0.5. So 0.5 क्या है, -1 और 1 के बिटवीन में लाई कर रहा है। इसका मतलब यस 1/2 बिलोंग्स करता है किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में बिलोंग करता है। सो इसलिए आंसर इज व्हाट, 1/2, क्योंकि साइन इंटू साइन इनवर्स x क्या देगा आपको, x देगा यदि x की वैल्यू स्क्रीन से है, अदरवाइज नहीं देगा। सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल, प्लीज मेक अ लुक हियर। आपको इवैल्यूएट करना है साइन इनवर्स 3/2। अब बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्या लिखा है मैंने, साइन इंटू साइन इनवर्स 3/2। फर्स्टली यू मेक अ नोट, देन आई विल रब दिस पार्ट। अब हमने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया। क्या चेंज किया, इवैल्यूएट साइन इनवर्स 3/2। आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। इट्स वेरी सिंपल, आप देखिए ध्यान से। साइन इनवर्स x, आपको पता है x की वैल्यू, ये हमें एक्सप्रेशन x देगा, जब x की वैल्यू इसके बीच में राय करेगी।
और आपको पता है 3/2, व्हाट इज 3/2? 3/2 नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, ये बिलोंग ही नहीं करता। आपको और भी चीज पता है, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 to 1 होती है, इसलिए मैंने इसको लिखा -1 से 1। और 3/2 का मतलब कितना हुआ? 1.5। नेचुरली बात है 1.5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब क्या है? ये आंसर इज व्हाट? आंसर इज नॉट डिफाइंड। तो इस आंसर को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साइन इनवर्स 3/2 वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो हाउ यू कैन डिफाइन? आई होप आपको समझ आया होगा, एंजॉइंग कर रहे होंगे इस वीडियो को, क्योंकि आपको ये चीज बेसिक कांसेप्ट क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर आपके लिए बड़ा होगा। तो आपको IITs कर रहे हो, NIT या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपको बेसिकली काफी इजी लगेगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब देखिए हमने क्या स्टडी किया है? साइन एक्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट? कोस फंक्शन, which is also known as cosine function. Cosine function is what? Cos functions. So यदि मैं cos function का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, y = cos x, आप चूज कर सकते हो वैल्यूज। मैंने बहुत सारी वैल्यूज दी और उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करी। आपको वैल्यूज पता है, cos 0 is what? 1, cos 30 is what? √3/2, cos 60 is what? 1/2, cos 90 is what? 0. So if I put cos 0 is, we get 1. So this is value is what? This is 1. So if I put cos 30, we get 0.87, 60 we get 0.5, 90 we get 0. So if you observe this pattern, it's very similar to sine function. There is nothing difference. वो difference क्या है उसको आपको ध्यान से समझना है। It's very simple. Otherwise, क्योंकि sine and cos are very very similar. Please make a look. This shape also comes of what function? Sine function. I am drawing a rough view and tell about the, बताऊंगा कि क्या डिफरेंस क्या है। देखो, हम ये फंक्शन किसका प्लॉट कर रहे हैं? साइन फंक्शन का। दिस इज साइन फंक्शन। जब आप कोस फंक्शन को देखते हो तो कोस फंक्शन कैसे दिखाई देता है? आपको ऐसा दिखाई देता है। Sorry, I put something wrong. If I put here, तो आपको ग्राफ इस टाइप से नजर आएगा, दिस टाइप। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो आपको 0 मिलता है। लेकिन कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो आपको 1 मिलता है। यदि आप साइन 90 की बात करता हूँ, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। हमें कितनी वैल्यू मिल रही है? 1 मिल रही है। लेकिन यदि मैं साइन कोस 90 की बात करता हूँ, तो कोस 90 में मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है? 0 मिल रही है। क्या मतलब है कि साइन और कोस दोनों सेम चीज है, पर डिफरेंस क्या है? उनका डिफरेंस है टाइम गैप, और कह सकते हो एंगल गैप। उनमें डिले है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर सेम, द डिफरेंस इज व्हाट? ओनली 90 डिग्री का। यदि आप इसमें से एक को फॉरवर्ड शिफ्ट करते हो तो आपको साइन की बजाय कोस मिल जाएगा। इसी टाइप से आप देखो, इस कोस फंक्शन को 90 डिग्री फॉरवर्ड डिले कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? साइन। यदि साइन को आप बैकवर्ड कर दो, डिले क्रिएट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? कोस बन जाएगा। मतलब साइन कोस क्या है? एक शेप ही है, बस उसमें डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, और कुछ नहीं होता। दोनों चीज सेम क्या है। लेकिन जब हम उनकी बात करेंगे, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज की, इनके डोमेन की, वो चीज क्या होगी उसको देखना है। पहले आप इस चीज को क्या करो, प्लीज मेक अ नोट कि क्या डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस ओनली 90 डिग्री का है। तो आप ये डिफरेंस रिमूव कर सकते हो बाय यूजिंग डिले। आप डिले का यूज करके आप साइन को कोस में चेंज कर सकते हो, और कोस को किस में चेंज कर सकते हो? साइन में चेंज कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब सिमिलरली आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये जो कोस फंक्शन है, ये भी आपका 1/1 या ऑन टू फंक्शन नहीं होता। इसको भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? 1/1 और ऑन टू बनाना पड़ेगा। चेक कर सकते हो सेम कि मैं वैल्यूज की बात करता हूँ। फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन है? कोसाइन फंक्शन।
मैं इसकी बात करता हूं 30 डिग्री की। अब चेक कर सकते हो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 इज √3/2। इसका मतलब आंसर आएगा आपका 0.87। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू लेता हूं 390। cos 390 को जब सोल्व करते हो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, cos 360 प्लस 30। अगेन cos no change, 30 as it is, answer is what, √3/2, same 0.87। और आपको पता है अब 30 नॉट इक्वल टू 60, सॉरी 30 इज नॉट इक्वल टू 390। सो cos फंक्शन में क्या है, नॉट 1 एंड नॉट ऑन टू। सो ना तो ये 1 फंक्शन है ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो सेम स्टेप वी हैव टू डू, मेक इट 1 एंड ऑन टू। हाउ वी कैन मेक, वी हैव टू फाइंड आउट अ रेंज सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑन विच द फंक्शन क्या बन जाए, सेम बन जाए, उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं यहां से चूज करने जा रहा हूं, क्या वैल्यू चूज कर रहा हूं, मैं डार्क कर रहा हूं इसको 0 से लेकर 180 के बीच में मैं लाई कर रहा हूं, इसको डार्क कर रहा हूं। आप देखिए ध्यान से इसको, ये वैल्यूज मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा सा इसको, तो आपको दिखाई देगा इस तरह। आप इसको देख सकते हो कि इसमें इस रेंज पे कौन सी रेंज ले रहा हूं, ये 0 डिग्री ले रहा हूं और ये कितनी डिग्री ले रहा हूं, 180 डिग्री। सो 0 से 180 डिग्री के बीच में आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू पुट करो और चेक करने की कोशिश करो क्या उस वैल्यू पे, किसी दो वैल्यू पे आंसर आपको सेम मिलता है या नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हो यहां से कोई भी वैल्यू पुट करो, क्या कोई ये शेप इस इंटरवल में रिपीट हो रही है, जब शेप रिपीट ही नहीं हो रही, इस पूरी वेवफॉर्म को दिखाई देता है आपको ये रिपीट हो रही है। इसका मतलब जो वैल्यू आपको 0 पे मिल रही है वही वैल्यू आपको किस पे मिल रही है, 360 पे भी मिल रही है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों पॉइंट सेम है। तो आप कह सकते हो कि इस ड्यूरेशन में तो ये 1 1 नहीं हो सकते, क्योंकि इस पे भी वैल्यू सेम मिलती है और इस पे भी वैल्यू सेम मिल रही है, तो ये 1 1 नहीं है। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ 0 से लेकर 180 इंटरवल की बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें कोई भी वैल्यू देख लो, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो रिपीट कर रहा हूँ, नहीं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब यदि आप कोई भी दो वैल्यू x1 x2 लीजिए, यदि दोनों वैल्यू अलग अलग है तो फंक्शन भी आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट ही मिलेगा। यदि फंक्शन डिफरेंट मिल रहा है डिफरेंट वैल्यूज पे तो फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है, बिकॉज ईच एलिमेंट ईच इमेज हैज अ pre-image also and each pre-image has a unique image, so it satisfies the condition of 1 1 function and 1 2 function. So what's the domain of cosec function is what, 0 to pi, but एक नॉट सिंगल एक नहीं है। आप ऐसे कितने मर्जी बनाओ, अब मैं यहां से यहां पे ले सकता हूं। अभी मैं इंटरवल क्या ले रहा हूं, पहला इंटरवल 0 से 180 को क्या लिख सकता हूं, पाई लिख सकता हूं। अब इसमें 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है, लेकिन जरूरी नहीं है इसको लूंगा मैं। मेरे पास कोस इनवर्स फंक्शन की और भी ब्रांच होगी, सॉरी कोस फंक्शन की, मैं इसको और भी ले सकता हूं। अब ये 180 से लेकर यहां तक भी ले सकते हो, मैं इसको ये भी ले सकता हूं, पाई से लेकर 2 पाई भी ले सकता हूं, और आप इधर भी आ सकते हो, कहां से लेकर, 0 से लेकर नेगेटिव पाई, 0 से लेकर नेगेटिव पाई, आप यहां भी जा सकते हो। इसका मतलब हमारे पास क्या एक ब्रांच है, 0 टू पाई, पाई से 2 पाई, ऐसे हम कितने मर्जी इंटरवल ले सकते हैं। और किसके लिए, ताकि फंक्शन को 1 1 बनाया जा सके और ऑन टू बनाया जा सके, ताकि हम इसका क्या निकाल सके, इनवर्स निकाल सके, बिकॉज द चैप्टर नेम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो आपको समझ आया होगा। लेकिन हम कौन सा इंटरवल यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये इंटरवल हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल वैल्यू। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको लर्न करनी है ये चीज कि यदि आप कोस फंक्शन ले रहे हो, कोसेक फंक्शन, तो उस केस में आप डोमेन क्या ले सकते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट
कोस फंक्शन, नॉट इनवर्स फंक्शन, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में तो डोमेन क्या बन जाता है, रेंज, और रेंज क्या बन जाती है, डोमेन। तो मैं कोस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जिस केस में डोमेन क्या है मेरा 0 to पाई। और एक चीज और नोट करो, क्या नोट, जबकि साइन का फंक्शन सेम है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, -1। आप कोई भी एंगल पुट करो, क्या रेंज इससे ज्यादा आ रही है, नहीं आ रही, क्या रेंज इससे कम आ रही है, नहीं आ रही। इसका मतलब इसकी रेंज भी क्या है, बाउंडेड है, इसकी रेंज भी क्या है, सेम है। क्या रेंज है इसकी, -1 से 1। सो प्लीज नोट, डोमेन इज व्हाट, इसका डोमेन क्या है 0 से पाई, और रेंज क्या है इसकी -1 to 1। तो आपको याद रखना है cos x फंक्शन का ये डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन हो गया 0 से पाई फॉर 1 फंक्शन के लिए, नॉट अ कंप्लीट फंक्शन के लिए। एंड रेंज इज व्हाट, -1 से 1 फॉर 1 फंक्शन। इसको आप हमेशा भूलिए मत, फॉर 1 के लिए है ये 1 एंड ऑन टू के लिए, कंप्लीट फंक्शन के लिए नहीं है। कंप्लीट फंक्शन के लिए आंसर आएगा तो क्या आएगा, डोमेन इज कंप्लीट रियल वैल्यू। सो दिस इज व्हाट फॉर 1 function. So please again make a note, then we will do cos inverse function. So please make a note. तो अब किसको रिप्रेजेंट करना है, इनवर्स फंक्शन को। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, f of x function is what, cos inverse x। तो क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल, सेम क्या करना है, जो x एक्सिस पे पुट करते थे उसको y एक्सिस पे रखना है, जो y एक्सिस को पुट करते थे वो x एक्सिस पे। तो मैं इसको रफ सा बना के दिखा रहा हूँ आपको, और फिर आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू कैसी आएगी। पहले मैं एक रफ सा बना देता हूँ, यहाँ पे कोस इनवर्स पे जब प्लॉट करते हो तो आपको वैल्यू ऐसी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या पुट कर रहे हो आप, इस डायरेक्शन में वैल्यू और इस डायरेक्शन में थीटा। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू को, सपोज करो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू को, यहाँ पे पुट करते हैं ना सेम जैसे ऐसे ही पुट करेंगे 30 कोस, सॉरी कोस 0 कितना होता है 1। इसका मतलब यदि मेरी वैल्यू यहाँ पे 0 है तो मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है 1, ये पॉइंट मिल रहा है। अब मैं यदि वैल्यू की बात करता हूँ 30 की, तो 30 डिग्री पर मुझे कितना मिलेगा, √3/2, इसका मतलब 0.87 मिलेगा। ये वैल्यू 1 है, ये 0.87, तो मुझे इस टाइप से मिलेगा आंसर। और यदि इसको नीचे बढ़ाऊंगा तो मुझे इस टाइप से मिलेगा। तो सिंपली यदि आप इस वेवफॉर्म को देखना चाहोगे तो इसकी वेवफॉर्म आपको ऐसी नजर आएगी। This is the waveform of what, cos inverse function. So please make a note first. सिंपली देखिए आपने क्या देखा, यदि हमने x को y बना दिया, y को x बना दिया, तो मैंने x में वैल्यू ली 30 ली, cos 30 कितना होता है 0.87, 60 कितना होता है 0.5, cos 90 कितना होता है 0। तो मुझे कुछ इस टाइप से वेव नजर आई। ये तो मैंने थोड़ा सा लॉन्ग करके करा, वैल्यू क्लोज ली। यदि मैं उसकी वैल्यू को लार्ज गैप में लेता 90 डिग्री 180 डिग्री, तो आपको ये वेव शेप ऐसे नजर आती है। सो दिस इज द वेव शेप ऑफ व्हाट, इनवर्स cos फंक्शन, एंड दिस इज द शेप ऑफ व्हाट, cos function. I hope you understand this. That you can make a mirror image same as, जैसे हमने अपने sin function का mirror image किया, वैसे आप इसका कर सकते हो along the same line y equal to x axis. It's very similar. I hope you understand this. So please make a note. Then I will write some condition of the cos inverse function. So please make a note first. Now please look by definition what it says कि cos इनवर्स का डोमेन क्या है -1 to 1 एंड रेंज क्या है 0 to पाई। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यदि ये चीज़ नहीं पता तो आप कैसे काम करोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ग्राफ से एक एक पॉइंट क्लियर करा कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या चीज़, हमें पढ़ना कैसे है। सेम डेफिनेशन जैसे हमने साइन इनवर्स की डेफिनेशन साइन की रीड करी, ऐसी cos इनवर्स की cos इनवर्स इनटू cos x। इट मींस ये हमें x देगा, कब देगा x, तो x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2, cos इनवर्स x ये हमें क्या देगा, x देगा, कब देगा, जब x की वैल्यू यदि -1 से 20 के बीच में लाई करेगी, नहीं तो नहीं देगा। दिस इज द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सो प्लीज मेक अ नोट। आपको क्वेश्चन है इवेलुएट करना है cos इनवर्स √3/2
2। अब आपको पता है कि √3/2 तो डेफिनेशन किससे मैच करती है? कोस इनवर्स से। तो आप देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे इसको, कोस। अब √3/2 चेक करिए कि किस एंगल पे वैल्यू होती है, ये 30 पे वैल्यू होती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos 30, एंड 30 कैन बी रिटन एज π/6, हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए कि cos इनवर्स cos ये फंक्शन आपको x देगा, मतलब π/6 देगा, यदि x की वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा x कितना है, π/6 है, और आपको पता है π/6 किसके बीच में आता है, रेंज क्या है 0 से, सॉरी डोमेन क्या है 0 to π। तो आपको पता है π/6 मतलब 30 तो 0 और 180 के बीच में आता है, इसका मतलब करेक्ट। सो आवर आंसर इज व्हाट, आंसर इज सिंपल π/6। सो आवर आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, बट आपको चेक करनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इन कंडीशन को आपको लर्न करना पड़ेगा, इसलिए इसको नोट करिए अपनी फेयर नोट को। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज चेक इट, cos inverse 1/2, and you know with the values of 1x this. Please make a note. In this we have to do something correction. What the correction? Please make a note. If x lies 0 to 1, in that case it gives us x. Otherwise if the values of x is -1 to 0, it means the value is negative, then what's the answer it gives us? I am writing first, please make a look here. आप देखिए कि cos इनवर्स cos 1/2 है, आपको पता है कि 1/2 0 से 1 के बीच में लाई करता है, पॉजिटिव है, तो ये cos इनवर्स cos क्या दे देगा आपको, x। तो आपका आंसर कितना आ गया, यहां से डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि जो 1/2 है वो किस रेंज में बिलोंग करता है, सॉरी 0 to 1 में बिलोंग करता है। सो आवर आंसर इज व्हाट, आंसर इज 1/2। बट द क्वेश्चन कम्स cos into cos inverse -1/2, then what we have to do, please make a note first. So please make a note in this, you have to write as it is, but मैं चेंज कर दूंगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज है, ये तो आप सिंपल रख सकते हो, सेम वही रहेगी -1 से 1। बट अब क्वेश्चन आता है कि जब ये पूरी वैल्यू, अभी तो हम x की बात कर रहे थे ना, कि x की वैल्यू तो -1 से भी के बीच में लाई करेगी, लेकिन यदि ये आपका फंक्शन क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए, तो आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान देना। वैसे तो ये नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। अब देखो हमें इवेल्युएट करना है cos इनवर्स -1/2। आपको पता है कि इसको आप ये लिख सकते हो cos इनवर्स -1/2, cos की किस एंगल पे वैल्यू होती है, cos 60 पे, तो आप इसको लिख सकते हैं cos 60, और 60 को लिख सकते हैं π/3। लेकिन ये cos इनवर्स नेगेटिव से कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि हमारा cos और cos इनवर्स क्या होना चाहिए, साथ साथ आना चाहिए। तो आपको नेगेटिव साइन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव करने का क्या स्टेप होता है, वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को प्लीज नोट कर लो। प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट एंड आई राइट द प्रॉपर्टी। तो ध्यान दीजिए cos इनवर्स -1/2 आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.1 में मिल जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली क्वेश्चन बेस्ड किस पे है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहीं पे दे देता हूँ ताकि आप 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। सो cos इनवर्स यदि नेगेटिव x में कोई वैल्यू आती है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई माइनस cos इनवर्स x। सो आपको ये करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एंड x इज व्हाट, x इज 1/2। नाउ इट बिकम्स सिंपल। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे करोगे, सेम cos इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, cos 60 मीन्स π/3। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई अकॉर्डिंग टू हमारी गिवन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी, cos इनवर्स इनटू cos ऑफ x, और जब x की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करती हो, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती हो। अब सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब ये π/3
sorry, what I'm trying to, x is what, x is mine or 0 to pi, because the डोमेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स फंक्शन क्या होती है, 0 से पाई। तो कोस इनवर्स की रेंज क्या है, डोमेन 0 से पाई है। तो अब ये देखिए पाई बाई 3 क्या है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो आप लिख सकते हो पाई बाई 3 जो है वो बिलोंग करता है किससे, 0 से पाई के बीच में। तो अब ये क्या देगा आपको, ये वैल्यू क्या देगा, x देगा। तो इस केस में हमारा क्या आंसर आया, पाई एच माइनस, ये हमें क्या दे देगा, पाई बाई 3, और पाई में से पाई माइनस करेंगे पाई बाई 3, तो आंसर कितना मिलेगा हमें, 2 पाई बाई 3। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। वैसे ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके सेकंड एक्सरसाइज में आएगी, तो हमने जो तक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसके थ्रू हम ऑल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब याद रखिए कि कोस इनवर्स नेगेटिव एक्स आ जाता है तो आप इसमें क्या अप्लाई करोगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि कोस इनवर्स नेगेटिव एक्स है तो आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो मैंने क्या करा, कोस इनवर्स माइनस 1/2 था, इसको लिख दिया पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, क्योंकि नेगेटिव रिमूव हो गया इन दिस केस। अब 1/2 मुझे पता था, 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, कोस पाई बाई 3। अब मुझे पता चल गया कोस इनवर्स इंटू कोस, कोस इनवर्स इंटू कोस, ये कैंसिल आउट हो सकता है, हमें क्या देगा, x देगा। यदि x की वैल्यू कहां से कहां आती हो, 0 से पाई के बीच में आती हो, तो हमारा जो 60 है वो तो 0 से 180 के बीच में आता ही है। इसका मतलब ये हमें क्या दे देगा, पाई बाई 3, और यहाँ से मिला पाई। सो 180 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा, 120, और 120 को क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई बाई 3। सो दिस बिकम्स वेरी इजी। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। सो हमने क्या करा अभी तक, साइन फंक्शन पढ़ा, कोस फंक्शन पढ़ा, साइन इनवर्स फंक्शन पढ़ा, कोस इनवर्स फंक्शन पढ़ा। तो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से और कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ेंगे। कौन से फंक्शन, टेंजेंट, कॉट, सेकेंट एंड कोसेकेंट इनवर्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए तो आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो अपने फ्रेंड्स को क्या करिए, शेयर करिए जितना आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी नीड रहेगी और ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो बना सकता हूँ। तो आई होप you enjoy this video. Thank you once again for watching my video. Again request you, if you really like, don't forget to subscribe, like and share.